Hi everyone, welcome back to the Code Street. This is Siddhant, and in today's video, we will be moving one step forward than what we did in the previous video. That is, last video में हमने discuss किया था कि how will we find out the maximum sum sub array from a given array, and what we discussed was the brute force technique to do it, and we did it in O of n cube solution, which was a pretty bad solution for us क्योंकि सोल्यूशन तो निकल गया बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज वेरी वेरी लॉन्ग, जिससे टीएलई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं व्हेन यू विल बी सिटिंग इन एन ऑनलाइन जजमेंट प्लेटफॉर्म या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग जब आप करोगे उसमें। और क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल बी ट्राइंग टू take it one step ahead, and we will be trying to find out an even better solution for it by lowering down the number of loops that we are using. That is 3 loops की जगह क्या हम 2 loops यूज करके इसको थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं, सोल्यूशन को ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज द फाइनल सोल्यूशन और नॉट। क्या उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है या फिर वही फाइनल सोल्यूशन है, वो भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। So that is something that we will be doing in today's video. But before we start off with the video, let us try to understand what actually Newton School is. So Newton School is actually an edtech platform which guarantees you 100% placement with some of the really great companies that they are working in collaboration with, and they will charge you 0 rupee as fee until and unless you get placed. That is, only after you get placed will you be liable to pay the fee back to them. And फिर उसके बाद courses that are offered by Newton School range from full stack development courses to courses designed for women to even courses which are curated for working professionals. So you can enroll into these courses, just get started with them, and after that आप placement के लिए ready हो सकते हो अच्छे से। In the recent times, Newton School has also started the Launchpad program, जिसमें they are offering a really great number of courses completely for free, and they are taught by some of the best instructors from various of the companies and firms. All you have to do is enroll yourself into these courses, and you can also earn a course completion certificate upon ending it. And if you feel like there is a need of coding, then you can go to their playground platform, जहाँ पे आप अपनी खुद की playground बना सकते हैं, and you can start coding as we have done in the previous videos itself. So that brings us to today's session. That is, we will be learning about way number 2 regarding the maximum sum subarray problem. Okay, so it seems like we have to delete this. So way number 2, that is pre-computation. ठीक है, pre-computation या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं cumulative sum। ठीक है, देखो अब क्या होगा, सपोज यू हैव एन एरे। ओके, एरे में ले लेता हूं, मान लो आई नोटेड इट -413 -262 -1। ठीक है, ये है तुम्हारी एरे। ऑलराइट, now what you have to do is that you have to find out the maximum sum sub array from this. Okay, अब आप इसको करोगे कैसे, ध्यान से देखो अब इसको। तो क्यूमुलेटिव सम में क्या होता है, यू हैव टू मेक अप अ क्यूमुलेटिव सम एरे फर्स्ट। तो हम एक बनाएंगे क्यूमुलेटिव सम एरे। ठीक है, तो हमारा आइडियोलॉजी क्या है यहाँ पे, हमारी आइडियोलॉजी है कि हम यहां से लेके यहां तक एंड तक एक एक करके पूरा का जो सब एरे बन रहा है ना उसका सम निकालेंगे। मतलब क्या हो रहा है, देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज यहाँ उतर जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्यूमुलेटिव सम में क्या आएगा, -4 + 1 कितना आया, -3।
नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इस पूरे का सम, राइट। तो इस पूरे का सम क्या आएगा, -3 + 3 0। नेक्स्ट का सम क्या आएगा, -2 0 -2 -2। अब नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक का सम क्या आएगा, फॉलो माई कर्सर, यहां से लेके यहां तक का सम क्या आएगा, -2 + 6 कितना आया 4, 4 + 2 6, 6 - 1 5, यहां तक का मेरा सम आया, ठीक है। तो इसमें मेरा मैक्सिमम सम कहां तक निकला, यहां तक निकला, यानी इस पॉइंट तक वाला जो था वहां तक निकला मेरा, ठीक है। तो ये वाले सम को मैं कैसे निकालूंगा, अब मेरा आइडियोलॉजी क्या है वो समझने की कोशिश करो। अब मेरा आइडियोलॉजी है कि अगर मैं 2 पॉइंटर ले रहा हूं, जैसे मैंने किया था पिछले ब्रूट फोर्स टेक्निक में, अगर मेरी 2 लूप चल रही है, एक मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है आई बोल के, और एक एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट कैन बी वेरिएबल। अब वो एंडिंग पॉइंट तो आई से लेके एन तक चलती है ना, जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा था। नाउ दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर, हियर और इवन देयर एज वेल। तो वो वेरी करती जाएगी हर लूप के साथ, राइट। तो अपन को क्या करना है कि हर आई जे के वैल्यू के साथ अगर हम ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई -1 कर देंगे तो क्या होगा, ये सेक्शन और मान लो यहां तक, यहां ये अगर जे की वैल्यू है तो ये सेक्शन, ठीक है। तो ए ऑफ जे इसका जो सम है इन चारों का, फॉलो माई कर्सर वेरी केयरफुली, इन चारों का जो सम है माइनस इसका जो सम है, अगर मैं कर दूं तो मुझे बीच का सम नहीं मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो बीच का सम निकालने के लिए मैं ये वाली टेक्निक अगर अप्लाई कर दूं तो मुझे बीच वाले इसका क्यूमुलेटिव सम निकल जाएगा, है ना। और फिर मैं इसको करंट सम में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। नाउ लास्ट वाला जो था, जो मैंने पिछले वाली टेक्निक में अप्लाई किया था, इफ मैक्सिमम सम इज ग्रेटर देन द करंट सम, तो फिर वो इफ करंट सम इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम सम, तब वो मैक्सिमम सम में स्टोर हो जाएगा, वरना वो वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है, अभी कोड करूंगा तो समझ में आएगी, ध्यान से समझो क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले अपना काम क्या है, अपना काम बहुत सिंपल है, उसको ध्यान से समझो। सबसे पहले what we are doing is we are accepting an array, वो मैं अब नहीं दिखाऊंगा तुमको, accepting an array, accepting an array, pretty simple. Now declare an array that is int cum sum, माने क्यूमुलेटिव सम है, जो कि एंटी क्यूमुलेटिव सम है। मान लो मैंने इसको डिक्लेयर की 1000 एलिमेंट्स की या फिर 100 एलिमेंट्स की, एंड व्हाट आई डिड वाज दैट टू रिमूव द गार्बेज वैल्यूज वी ऑलवेज डिक्लेयर इट लाइक दिस, राइट, प्रीटी क्लियर। अब अपन को क्या करना है, int max sum इक्वल्स टू int min, हमने पिछले वाले में ही किया हुआ है, ठीक है। int current sum that is int cur sum इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी अपन ने a of 0 तो वहां पे किया हुआ है ना, तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्टिंग एन एरे हम लोगों ने ऊपर ले लिया है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, सी इन a ऑफ 0, a ऑफ 0 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले मेरा काम होगा कि ये वाली जो एलिमेंट है ना, सी इन a ऑफ 0, ये वाली जो एलिमेंट है ये मेरे को सबसे पहले घुसाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज a ऑफ 0 और कम सम की जो 0th एलिमेंट है वो हमेशा सेम रहेगी। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, नेक्स्ट काम जो होगा रादर मेरा, वो होगा कि कम सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 0, ये मुझे कर देना होगा, ऑलराइट। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम ये है कि मेरा कम सम ऑफ 0 ये 0 हो गया, a ऑफ 0 भी मेरा 0, माने a ऑफ 0 की जो एलिमेंट थी वो मेरा वहां पे हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये करना होगा कि मैं एक लूप चलाऊंगा। अब उस लूप में मुझे क्यूमुलेटिव सम निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव सम कैसे निकलेगा, देखो इस कम सम वाला जो एरे है ना, ये कम सम वाला जो एरे है वो अब मुझे बनाना पड़ेगा। वो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मेरे पास ये ऑलरेडी ये वाली एलिमेंट है, तो हर अगली एलिमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो पिछली एलिमेंट है, दैट इज, अगर मैं एक लूप चला दूं फॉर
आई इक्वल्स 1 से लेके आई लेस देन n तक और i प्लस प्लस, और कम सम ऑफ i इज इक्वल्स टू, नीचे लिख रहा, अच्छा यही लिख देता हूँ फॉर्मूला, कम सम ऑफ i माइनस 1 प्लस a ऑफ i। तो कुछ गलती नहीं होगी इस फॉर्मूला में? कोई गलती होगी इस फॉर्मूला में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जरा सा एनालाइज करो। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे साफ हैंड राइटिंग में, तब तुमको समझ में आएगा। देखो, फॉर int i इक्वल्स 1 से चला रहा हूँ, लेस देन n तक चला रहा हूँ, i प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। कम सम ऑफ i है, ठीक है। फिर कम सम ऑफ i माइनस 1 कर रहा हूँ और उधर a ऑफ i चला रहा हूँ, ठीक है। इसमें गलती क्यों नहीं होगी? क्यों गलती होगी मेरे को ये बताओ पहले, ध्यान से समझो इस बात को। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, बहुत ही अच्छे से समझो इस बात को। दोनों की जीरो एलिमेंट के साथ मैंने डील कर लिया है, देख लो, ये मैंने डील कर लिया है दोनों के जीरो एलिमेंट, ठीक है। अब मैं लूप चला रहा हूँ 1 से लेके, तो यानी कम सम का जो ith एलिमेंट होगा, यानी कम सम का जो 1th एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक अब जो मैं फिल कर रहा हूँ, वो कैसे फिल होगा? वो हर बार जो पिछला एलिमेंट है कम सम i माइनस 1 का, उसका प्लस एरे ऑफ i, यानी एरे का जो फर्स्ट पोजीशन है, i की वैल्यू 1 है ना, तो a ऑफ i मतलब क्या होगा? a ऑफ 1 यानी 1, उसका सम, और कम सम ऑफ i का जो पिछला नंबर है उसका सम, यही होगा। यही तो हो रहा है ना। देखो, -4 नेक्स्ट क्या होगा? -4 प्लस 1 -3, -3 प्लस 3 0, 0 -2 वैसे ही तो जा रहा है ना। इसका पिछला टर्म कम सम का और मेन एरे का अगला टर्म, तो वही हमने किया, कम सम का पिछला टर्म, मेन एरे का पहला टर्म, बन गया मेरा फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो चलो, कम सम हमारा हो गया यहाँ पे। अब हमने कम सम निकाल लिया यहाँ पे, तो अब हमको अगला काम क्या करना होगा? अगला काम ये करना होगा, देखो हमारा मैक्स सम वहाँ पे डिक्लेयर्ड है, करंट सम हमारा डिक्लेयर्ड है, कम सम हमने निकाल लिया है। तो अब हम चलाएंगे दो लूप। फॉर एज यूजुअल int i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फॉर बहुत ही इजी, j इक्वल्स i, j लेस देन n, j प्लस प्लस। अगर करंट सम ऊपर 0 है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कर सम इक्वल्स टू, कर सम ही किया था ना कि कुछ और वेरिएबल था, कर सम इज इक्वल्स टू कम सम ऑफ j माइनस कम सम ऑफ i माइनस 1, राइट। कम सम ऑफ j माइनस कम सम ऑफ i माइनस 1, यही होगा। क्योंकि देखो, अगर हम देखें तो पहले i की वैल्यू मान लो 0 है, ठीक है। तो हमें क्या, पहला हमारा जो सब एरे बनेगा, अगर यहाँ पे देख लो, सब एरे बनेगा 4, फिर बनेगा 4,1, फिर बनेगा -4,1,3। तो ये देखो i हमेशा कांस्टेंट रहेगा, i कांस्टेंट रहेगा, j की वैल्यू चेंज होती जाएगी, j की वैल्यू कांस्टेंट चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो वो बीच का जो सब एरे का सम है ना, वो निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा? कम सम ऑफ j माइनस कम सम ऑफ i माइनस 1, समझ में आई ना बात? वो करना होगा हमको। अब उसके बाद तो फिर हमारा काम हो ही गया है, कर सम हमने निकाल लिया, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, मैक्स सम इक्वल्स मैक्स ऑफ मैक्स सम कॉमा कर सम, और उसके बाद सी आउट कर देना है, प्रिंट कर देना है मैक्सम को, एंड वी आर डन। तो इसी तरीके से हमने सिर्फ और सिर्फ दो लूप का इस्तेमाल करके O ऑफ n स्क्वायर तरीके से
क्यूमुलेटिव सम एरे का प्री कंप्यूटेशन जिसको हम कहते हैं उसका यूज करके ओ ऑफ एन स्क्वायर में इसका सोल्यूशन निकालिए. बट इज दिस सोल्यूशन द फाइनल सोल्यूशन? नो, दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन. इससे भी क्या कोई सिंपलेस्ट तरीका या फिर इससे भी कम वन लूप का यूज करके क्या हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को बाय अ मेथड विच इज नोन एज कडेन्स एल्गोरिथम. By a method which is known as Cadence algorithm. तो Cadence algorithm में क्या होगा? We will be doing this problem using only a single loop, that is using O of n time complexity. तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. अप अंटिल देन डोंट स्टॉप कोडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, mention it in the comment section below. Do like, comment and share this video and please do subscribe the video if you are viewing this one. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, do mention it in the comment and I will be more than just happy to solve it. Up until then, don't stop coding and do take care of yourself. Bye bye.